Good morning, students. Uh, in our last lectures, we discussed about the Article 13, and I hope that there is no any doubt about the concept of Article 13. Today, we are going to discuss about the right to equality, समता का अधिकार. Right to equality is the first and the foremost right which is guaranteed to all the person is the right to equality. जो संविधान में समता का अधिकार दिया गया है, यह अधिकार उन सभी अधिकारों में सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है. The natural justice is the right to equality, and the right to equality is the natural justice. ये जो दोनों टर्म हैं, दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. If there is a natural justice, then there is a right to equality. And if there is right to equality, then there is a natural justice. अगर नैसर्गिक न्याय है तो ही समता का अधिकार है, और जहाँ समता का अधिकार है वहाँ नैसर्गिक न्याय है. ये जो समता का अधिकार है, ये भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, और कुछ विशेष अनुच्छेदों में इनकी व्यवस्था प्रमुख रूप से की गई है. आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी. ये समता के अधिकार की गारंटी लेते हैं. अनुच्छेद 14 से 18. आर्टिकल 14 guarantees equality before law and equal protection of law. अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है. आर्टिकल 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ. अनुच्छेद 15 का जो प्रावधान है वह कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा. आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी. आर्टिकल 17 एबॉलिश द अनटचेबिलिटी इन द कंट्री. अनुच्छेद 17 के द्वारा भारत में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है. आर्टिकल 18 एबॉलिश टाइटल्स अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस. अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को केवल सेना से संबंधित या शिक्षा से संबंधी उपाधि दी जाएगी. इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि, कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा. ये जो प्रावधान है, दीज प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन confirm the right to equality. आर्टिकल 14
is the special article for the right to equality. The preamble of the Constitution speaks about equality of status and opportunity, and Article 14 gives effect to it. हमारे भारत का जो संविधान है वह समता की बात करता है, समता का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 14 उस प्रावधान को, उस प्रोविज़न को प्रभावी करता है। यह जो अनुच्छेद है ये हमारे प्रियम्बल की भावना को विस्तार देता है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 you can see that the article says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. इसके जो शब्द हैं अनुच्छेद 14 की, वे स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा. You can see that in this article two words are most important words. The first is equality before the law and the second is equal protection of the laws. Now the article says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of the India. Constitution gives this fundamental right to the persons, any person, and the two words which are used in this article are equality before the law and the equal protection of the laws. Now we have to see that what is the meaning of in these two words. These are similar or not. Now equality before the law. We will see equality before the law. यानी विधि के समक्ष समता. The guarantee of equality before law insists upon even administration of justice and ensure to every man the freedom under law. It is a concept implying the absence of any special privilege in favor of any individual. The guarantee of equality before law insists upon even administration of justice and ensure to every man the freedom under law. It is a concept implying the absence of any special privilege in favor of any individual. यह जो प्रावधान है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो न्याय का प्रशासन है, न्याय का जो सिद्धांत है, उस पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा
और यह बात सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी व्यक्तियों को विधि के अंतर्गत एक समान स्वतंत्रता होगी। यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो अवधारणा है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए अलग से विशेष विधि नहीं होगी। बट यू हैव टू नो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज however not an absolute rule and there are a number of exceptions to it। बहुत से इसके अपवाद हैं इस सामान्य नियम के। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन डिप्लोमेट्स enjoy immunity from a country's judicial process। Article 361 extends immunity to the President of India and the state governors। Public officers and judges also enjoy some protection, and some special groups and interests like trade unions being given special privileges by law। यानी ये जो सामान्य नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता, ये कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, इसके कई अपवाद हैं। जैसे कि जो विदेशी राजनयिक होते हैं उन्हें भारतीय न्यायालयों में छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 361 अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें राष्ट्रपति को, राज्यपाल को विशेष छूट प्रदान की गई है। इसी तरीके से जो लोक अधिकारी होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, इन सब के लिए भी अलग अलग प्रोविजंस होते हैं और अलग अलग तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे यह प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है कि जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो फिर इसका एक्सेप्शन डेवलप कैसे हो रहा है? क्यों फिर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का व्यवहार किया जा रहा है? तो यहाँ पर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जब हम समता की बात करते हैं तो समता का अर्थ होता है एक समान व्यवहार। लेकिन एक समान व्यवहार किसके साथ? क्या हम एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ और एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करें तो माना जाएगा कि ये समता का अधिकार है? हम एक लंबी दौड़ का आयोजन करते हैं और उसमें विकलांग व्यक्तियों को और स्वस्थ व्यक्तियों को एक साथ दौड़ा देते हैं। जो इस दौड़ को पहले पूरा कर लेगा वो फर्स्ट आएगा। इज देयर इज राइट टू इक्वलिटी? क्या हम समता का अधिकार प्रदान कर रहे हैं उस शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए, विकलांग के लिए और उस शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के साथ? इन दोनों के साथ एक समान व्यवहार निश्चित रूप से समता के अधिकार का उल्लंघन है। अरस्तु ने कहा है, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार समता नहीं है। हम असमान लोगों के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। हम किसी बच्चे के साथ वही व्यवहार नहीं कर सकते जो बड़ों के साथ करते हैं। हम शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ वही व्यवहार नहीं कर सकते जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के साथ करते हैं। हमें इस बात को स्पष्ट करना होगा, हमें इस बात को कन्फर्म करना होगा कि समता का अधिकार वास्तव में मिले। According to Dr. Jennings, equality before law means that among equals, the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike।
The right to sue and be sued, to prosecute and be prosecuted for the same kind of action should be same for all citizens of full age and understanding without the distinctions of race, religion, wealth, social status or political influence. यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समता का अधिकार है। अगर हम समान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं तो फिर निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि समता का अधिकार दिया जा रहा है, क्योंकि यह जो बात है कि एक समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, this is the concept which is provided by the Indian Constitution through Article 14. यही जो सिद्धांत है समता का, जो कि भारतीय संविधान देना चाहता है, वो यही है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नाउ द सेकंड टर्म इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी is positive in nature and is taken from the US Constitution's 14th Amendment, which states the equal protection will be meted out to person in similar circumstances. It is said to mean equality amongst equal. Equality amongst equal. This concept, equal protection of law, is taken from the US Constitution. And for your knowledge, I am telling you that the first concept, equality before law, is taken from the British Constitution. Now, this concept says that equal protection will be made out to person in similar circumstances, यानी एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को विधियों का एक समान संरक्षण मिलना चाहिए। जब हम ऐसा करने में सफल होंगे तो हम ये समझेंगे कि जो अनुच्छेद 14 का प्रावधान है वह वास्तव में लागू हो रहा है और हम समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात कर पा रहे हैं। Equal protection of laws guaranteed by Article 14 of the Constitution does not mean that all laws must be general in character and universal in application, and that the state no longer has the power of distinguishing and classifying persons or things for the purpose of legislation. This is the another thing कि जो अनुच्छेद 14 का प्रावधान किया गया है उसका यह मतलब नहीं है कि जो विधि बनाई जाएगी वो का एक ही समान चरित्र होगा और वो यूनिवर्सल होगी और सब पर लागू, एक समान लागू होगी, और राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह क्लासिफाई ना कर सके चीज़ों को।
लेकिन इससे पहले एक बात को और समझना होगा कि ये जो दो टर्म हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड द इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों एक्सप्रेशन अलग हैं अथवा एक हैं। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के मामले में जो कोर्ट का व्यू रहा है, जो न्यायालय का व्यू रहा है, वो ये रहा है कि विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही एक उपसिद्धांत है। द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज currently of the equality before law, and it is difficult to imagine a situation of any violation of equality before law without violation of equal protection of law। यानी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के मामले में जो न्यायालय का ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि हम ऐसे परिस्थितियों की कल्पना ही नहीं कर सकते कि जहां विधियों के समक्ष संरक्षण तो मिले लेकिन विधि के समक्ष समता का अधिकार न मिले, या विधि के समक्ष समता मिले परंतु विधि से समान संरक्षण न मिले। यानी ऐसी परिस्थिति की कल्पना करना ही मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अ सिचुएशन ऑफ एनी वायलेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ विदाउट वायलेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी समता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब विधि के समान संरक्षण का भी उल्लंघन होगा। विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब विधि के समक्ष समता का भी उल्लंघन होगा। ये जो दोनों वाक्यांश हैं, जो दोनों शब्द हैं, जो दोनों टर्म हैं, ये एक दूसरे के लिए उपसिद्धांत हैं। इनका अलग अस्तित्व संभव नहीं है। नाउ द क्लासिफिकेशन। Already I said you that equal protection of law guaranteed by Article 14 of the Constitution does not mean that all laws must be general in character and universal in application, and that the state no longer has the power to distinguish and classifying persons or things for the purpose of legislation। यानी ये जो सिद्धांत है अनुच्छेद 14 का, इस सिद्धांत का यह अर्थ नहीं है कि ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर परिस्थितियां अलग हैं तो फिर उन अलग परिस्थितियों में अगर हम एक समान व्यवहार करते हैं तो फिर वो समता का अधिकार नहीं है, वो निश्चित तौर पर अन्याय है, अनजस्टिस है। तो इस अन्याय को रोकने के लिए, इस अनजस्टिस को रोकने के लिए ये स्टेट का दायित्व हो जाता है कि वह क्लासिफिकेशन करे, वर्गीकरण करे, वह वर्ग बनाए और उस एक वर्ग में आने वाले एक जैसे व्यक्तियों के लिए एक जैसी विधि का निर्माण करे। सो इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड दैट पीपल आर डिफरेंटली प्लेस्ड, the varying needs of the different classes or section required differential and separate treatment। State therefore must have the power of making laws to, first is, attain particular object which is lawful, and for this, second is, distinguish, select and classify persons so that people of one class are similarly situated and treated alike। Equality of treatment could be made out the people over similar circumstances। यानी हम इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति होते हैं
वे अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं, उनकी अलग आवश्यकताएं होती हैं, उनके डिफरेंट क्लासेस हैं, उनका अलग वर्ग है और उनको अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। हम एक ही जैसा ट्रीटमेंट सभी लोगों के साथ नहीं कर सकते और इसलिए राज्य को यह अधिकार है कि वह ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए लॉ बनाए और क्लासिफाई करे, वर्गीकृत करे लोगों को और एक वर्ग में एक जैसे लोगों को शामिल करे, ताकि उन लोगों के साथ विधि का जो व्यवहार हो, जो समव्यवहार हो, वह कहीं से भी अन्याय अनजस्टिस को पैदा न करे। उनके साथ एक समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, यही समता का अधिकार है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, एक समान व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार। अगर हम असमान लोगों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं तो ये कहीं से भी समता का अधिकार नहीं है। It means Article 14 give a permission for the classification, and with the help of this classification we can give the right to equality to any person. But this is important to know that what are the rule for this classification. यह जो वर्गीकरण किया जाएगा, यह वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा, इस वर्गीकरण का मानक क्या होगा। तो इन द केस ऑफ रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस S.R. तेंदुलकर, according to Supreme Court, to test whether a classification adopted by law is reasonable or not, the Supreme Court adopt the following twin test. दो मानक सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। फर्स्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, यानी यह जो क्लासिफिकेशन होगा, यह जो वर्गीकरण होगा, यह एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होगा। एंड द सेकेंड इज, दिस डिफरेंसिया adopted must have a rational and reasonable relationship with the object it seeks to achieve. और जो दूसरा मानक है, जो दूसरा पैमाना है, वह मानक यह है कि जो डिफरेंसिया है, जो बोधगम इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है, बोधगम अंतरक है, उसमें और उस उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे यह अधिनियम पाना चाहता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए किसी एक्ट को बनाया गया है, किसी अधिनियम को बनाया गया है वर्गीकरण के आधार पर, उस उद्देश्य में और उस क्लासिफिकेशन के लिए जो अंतरक अपनाया गया है, उस अंतरक में एक बोधगम्य संबंध होना चाहिए। दिस डिफरेंसिया adopted must have a rational and reasonable relationship with the object it seeks to achieve. तो रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर का जो ये मामला आया, इस मामले में न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो वर्गीकरण किया जाएगा, यह वर्गीकरण किस आधार पर होगा। यानी वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर वो मनमाना होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि वर्गीकरण निश्चित तौर से असमानता को उत्पन्न करता है, लेकिन केवल असमानता पैदा हो जाने से वो इल्लीगल नहीं हो जाता। जो असमानता उत्पन्न हुई है, उस असमानता में मनमानापन होना चाहिए, राज्य की स्वेच्छाचारिता होनी चाहिए। यदि कोई विधि किसी विशेष वर्ग के सभी सदस्यों के साथ एक समान व्यवहार करती है तो उस पर यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि वह अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होती और इसलिए व्यक्ति विशेष को समता के संरक्षण से वंचित करती है। यदि एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जा रहा है तो फिर वह विधि संवैधानिक होगी।
बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, उस क्लासिफिकेशन में उन मानकों का पालन किया गया है या नहीं जो कि रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस एस आर तेंदुलकर के मामले में बताए गए हैं। ठीक है, आपने देखा कि टू टेस्ट वेदर अ क्लासिफिकेशन अडॉप्टेड बाय लॉ इज रीजनेबल और नॉट, द कोर्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग ट्विन टेस्ट। दो ये फॉलोइंग ट्विन टेस्ट हैं। First, it should be based on an intelligible differentia. This is the important word, intelligible differentia, बोधगम्य अंतरक. And the second is the differentia adopted must have a rational and reasonable relationship with the object it seeks to achieve. तो हमें इन दोनों बातों को याद रखना होगा कि जो वर्गीकरण किया गया है वह वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए और उस अंतरक में और उस उद्देश्य में जो कि विधि को बनाकर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, एक तर्कसंगत और न्याय संगत युक्त संबंध होना चाहिए। अब इतनी बातों को आप बेयर और बुक्स के माध्यम से क्लियर कर लेने का प्रयास करिए, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। अभी हम आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। नाउ वी हैव मोर थिंग्स इन दिस आर्टिकल फॉर द डिस्कशन एंड वी विल कंटिन्यू इट आवर नेक्स्ट लेक्चर।